Very good evening to all. Welcome all of you for another session of Holistic Health. Today, our topic is prevention versus cure. We all know that because prevention is better than cure, but we don't know what are the steps that we should look after and how we should work on the preventions instead of the cure. I am Ekta Gupta, today's moderator. I am entrepreneur, educator, explorer, and learner. In 2016, I started a journey towards greener, happier tomorrow with mission Every Corner Needs a Plant and gave birth to Parijay Genius Private Limited in April 2017 and Mool Srishti Foundation in September 2022 with vision of bringing people close to nature and promoting Go Green concept by connecting environment to employment. We focus on environment and women employment. Our goal is to provide living wages and human working conditions to our artists. So now I welcome our today's moderator, Ms. Anuradha Chawla. She is CEO and founder of Be Better HR Solutions, COO at PAN, specializing in HR consulting, corporate training, and personal coaching. Anuradha is a corporate trainer with 20 years of experience in strategic leadership development, human resources, and operations. She is a published author and has co-authored a book, a certified life coach and POSH trainer. International speaker and empaneled with NITR, Ministry of HRD, Government of India, Management of Trainer at Center for IAS, and other competitive exams, Punjab University Advisory Board member of Mittal Institute of Hospitality, Punjab Startup Mentor with Teerth Thankar, Tirthankar. Teerth Thankar, Mahavir University, Muradabad, mentor with Startup Punjab and Startup Accelerator Chamber of Commerce, SAC India, President of Life Skills Council, Women India Chamber of Commerce and Industry, Wiki, mentor with Agla Academy, Nigeria. Welcome, Anuradha. Thanks so much. And now is the time to introduce our today's speaker, Mr. Puneet Bansal. He is a second generation entrepreneur with a strong business acumen, initiated his career in KPMG after completing CA, then co-founded Theon Pharmaceuticals Limited in 2006, state-of-art facility in the pharmaceutical industry, exporting into 30 plus countries. Parallelly completed his MBA degree and CISA, his new injectables plant coming up at Derabasi. He has stake into multiple ventures, including global e-commerce distribution, Maruti Nexa dealership, embarked on a journey of startup investment, currently engaged in Give Startups Ventures with a vision to invest in 15 to 20 startups within the next 1 to 2 years and ensuring their growth and success. An avid traveler with a wanderlust spirit, having explored over 45 countries with a goal of visiting 150 plus countries worldwide. He is associated with many foundation and trusts who are working for the upliftment of society and underprivileged for society. He is doing various charity works with different NGOs and also running slum schools and skill development courses free of cost. His vision for the future is committed to leveraging many entrepreneurial journey and experiences to inspire and empower aspiring entrepreneurs, holistic success navigator, helping budding entrepreneurs to start and scale up their business via wisdom of spirituality, and personal experiences via social media and YouTube. That's really wonderful. I welcome Mr. Puneet Bansal for today's session on prevention versus cure. So over to you, Anuradha. Thank you so much. And thank you for introducing us. I would again welcome Mr. Puneet Bansal to our show today. And it is about holistic health. The session is going to, I'm sure, help each and every one who is going to watch it. The topic itself is very interesting. Prevention is better than cure. As we all know that instead of running after the cure when we are already diseased, it's always good to look for prevention rather than, first being diseased and then going for a cure. So the title itself is very much understandable. Let's establish the title and understand from Puneet's point of view how he has, lived a life, a holistic life, being a wanderer, being a traveler, and how he has understood this
very interesting term called prevention is better than cure. So, Puneet, before I start my question, I will just give you an open question. Why do you think is prevention better than cure? Okay. Thank you, Anuradha. Thank you, Ekta, for a lovely introduction and a very important question. Like बचपन से हम सुनते आ रहे हैं prevention is better than cure. Correct. But and हमने कभी ये realize नहीं किया है इसका meaning क्या है. In fact, thankfully we मतलब कि हम अपनी life में इतने busy थे कि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया. बचपन में it was very normal. आप तबीयत खराब होगी अब दवाई खा लो. ठीक है. It is very normal. और जब कोविड आया तो लोगों को समझ में आया इसका रियल मीनिंग. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. कि आपने अपने आप को बचाना है बहुत सारी ऐसी चीजों से. ठीक है. क्योंकि हमें लगता है कि हमारी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, दवाई हर एक चीज का इलाज है. नहीं है. जो साइंस है उसके पास कुछ बीमारियों का इलाज ही नहीं है. जैसे कोविड आया, देयर वाज नो क्योर. वैक्सीनेशन भी आई बट उसका कोई क्योर नहीं था. तो अगर आप प्रिवेंट करते हैं कोई चीज से तो आपको क्योर की जरूरत नहीं है. तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं आजकल. इतनी नई नई साइंस में बीमारियां आ गई हैं. हर रोज पेटेंट पे लोग करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं. कंपनियां $1 billion दे आर स्पेंडिंग एवरी R&D बजट आप देखो बड़ी कंपनी के. तो प्रिवेंशन इज बेटर फॉर लॉट ऑफ रीजंस. पहला कि अगर आप क्योर है इट इज अ कॉस्ट टू यू first of all. Second, I would say it is a lot of stress to you and your family members, because if you are not healthy, it will not only put maybe you are rich, maybe you can afford medicines, that is okay. But agar aap, it is a stress to your family when you are on bed. There's a opportunity cost, then there's a lot of stress in the family, and you can actually infect your family also, like COVID में हुआ. तो आपको लगता है कि यार आप बीमार है तो क्या बात है मैं दवाई खा लूंगा. बट इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट योर फैमिली, योर सोसाइटी, सो मेनी पीपल. इट इज अ बर्डन. कोई भी मेरे यहाँ पे मेरे मदर कहते हैं बीमार बंदे को कोई रख के खुश नहीं होता, चाहे वो आपकी इमीडिएट फैमिली क्यों ना हो. तो बीमार कम पड़े, प्रिवेंशन करें. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके आप प्रिवेंशन कर सकते हैं. क्योर तो करना पड़ेगा अगर प्रिवेंशन नहीं किया. तो प्रिवेंशन इज ऑब्वियसली बेटर देन क्योर. वाई टू फॉल फॉर इलनेस. अगर हमें पास मेथड है, मेथोडोलॉजी है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं. और वो उसका क्योर तो बाद में करेंगे ना जब जरूरत पड़ेगी. तो उससे वो स्टेज ही क्यों आने दो. वाई टू इट्स लाइक सेइंग लॉट ऑफ पीपल से कि यार फिटनेस का इशू है, हेल्थ का इशू है. जब जब बीमारी आएगी तब देखेंगे, अभी तो हम यंग है. दैट इज व्हाट पीपल डू. बट भाई 40 के बाद, 45 के बाद, 50 के बाद जब आपको डायबिटीज, बीपी, इतने इश्यूज होंगे तब क्योर करोगे क्या. क्या आज प्रिवेंट कर लो ताकि यू कैन हैव अ गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ. तो दैट इज व्हाट आई बिलीव. तो प्रिवेंशन इज एनी डे. वो बचपन से सिखाया है, स्कूल में सिखाया है, बट हम फॉलो नहीं करते. कहीं ना कहीं हम लेजी हो गए. बहुत सही बोला पुनीत आपने. मैं बीइंग अ कोच, आई पर्सनली कोच पीपल अबाउट लाइफस्टाइल. सो व्हेन आई टॉक टू देम, बोलेंगे कि अरे मैम अभी तो यंग है, एनर्जी है, कर लेंगे हम, खाते पीते अच्छे रहते हैं, और मतलब कुछ वो लाइफस्टाइल इश्यूज हैं. सो आई टेल देम, व्हाई डोंट यू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ? even if you have habits you are indulging, so make sure that you are equally exercising. So that is somewhere prevention only. सो मैं यही बोलती हूँ, मैंने अरे टाइम नहीं है मैम, टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है. तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई इट्स लाइक आप गाड़ी चलाते जा रहे हो और पेट्रोल भरवाने का टाइम नहीं है. तो अगर पेट्रोल नहीं भरवाओगे तो गाड़ी तो रुकेगी, है ना. तब हम कंप्लेन करेंगे, धक्का लगाओ, एंड देन इट इज नॉट वन पर्सन हु इज सफरिंग. One person, one deceased person, the entire family is suffering, emotionally drained out, financially drained out, and the kind of help everybody needs. You're taken to the doctor. All those things require manpower. तो आपका business, आपका job, उस पर भी ध्यान हटता है. So I think we understand here that prevention is much better than cure. राइट. राइट. अब मैं आपसे एक बड़ा निजी सवाल पूछना चाहूंगी. आई अंडरस्टैंड इट्स अ एकता जी आप हमें ना इफ यू कैन टैग, इफ यू कैन पिन अस सो दैट हम लोगों को वो दिखे हाईलाइट करके, नहीं तो फिर बाकी ओपन विंडोज भी दिखते हैं. यू कैन पिन अस द. I'm doing it. I'm doing it. अच्छा ठीक है. Sure. सॉरी. हाँ जी. So I want to know. See, I know a little bit about your family now that we have spoken. So your father has suffered from diabetes. Your mother has fought and survived cancer,
and you yourself have battled with asthma in the childhood. So going through all that profound experience, what have you gathered, and how did you bring the shaking boat back in I'd say from rough weathers to smooth? How did you do all that? And I understand now you're healthy and the family is healthy. So what was that journey and how it kind of evolved you as a So person? you are rightly said that I can talk about first my father, how it happened. Like for my father, so my mother got cancer, throat cancer, when I was in 11th. Then I was 15, 16 years of age. So it is around 25 years back. And my father, because of stress, there was no diabetic in the family. There was no history. Because of the stress, emotional stress, mental stress, was he was worried about my mother. He developed diabetic, and obviously with diabetics, a lot of things you cannot do. So as you said, holistic health. Holistic health is not only about physical health. We'll talk about it. It is emotional, mental health. Everything is connected. Even financial health is connected. So health has a lot of parameters. So I somehow feel कि अगर obviously डायबिटिक के बाद उन्होंने बहुत केयर रखा, अपने आप को सैर भी करते थे, नीलम, बोलना बहुत नहीं। खाने का भी बहुत ध्यान रखते थे, हर एक जगह उनको इंसुलिन भी लगती थी, उनको दवाई भी खाते थे, बट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, जितना आप काम कर सकते हो उतना नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सो मे बी बिकॉज ऑफ द इमोशनल स्ट्रेस इट हैपेंड. एंड अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो आई कैन टेल यू लाइक जब मैं आई वॉज जस्ट 6 months ओल्ड, बिकॉज मुझे मेरे मदर बोलते हैं कि मेरा निमोनिया बिगड़ गया था, लाइक बोलते हैं, मदर बोलते हैं कि, और कहते हैं आपको ना ठंड लगी थी तो इस कारण ना आपको अस्थमा हुआ. दैट वाज दैट वाज बीइंग टोल्ड टू मी. तो क्या हुआ, बचपन से ना जब भी ठंड होती थी मेरे को अस्थमा ट्रिगर होता था, क्योंकि दिमाग में ये बैठ गया था कि ठंड इज नॉट गुड. एंड every season, like every season, I used to suffer from asthma all the times, and I used to hate winters. And I said ki boss, this is not the right thing. मतलब कि, so I used to think that maybe I'm in North India, I should be in South India or some other places where there are no cold winters. So I used to hate that 3 months of January or December, January, February, something like that. So, and every time it was triggered. Today I'm cured. Thankfully I did a lot of things. So but I feel that it was somehow subconsciously was there in my mind that because of cold I am asthmatic, it is triggering me. So that was a kind of an emotion or a subconscious. For my father it was a stress. A lot of people say that health is because of maybe you have not eaten wrong. My father is very good with eating. He is like taking care of his health very well, but still he got diabetic for different reasons. I got asthma for a very different reason. So a lot of people say physical health, uski physical health ठीक रहती है, fitness वाली जो fit रहता है. There is an example of Nikhil Kamath ji जो Zerodha के हैं. So I am to no one to talk about it, but a lot of people make a lot of blogs LinkedIn पे कि उसकी health भी खराब होगी, वो इतने fitness freak हैं, gym जाते हैं. तो physical health is one parameter of health. आपने holistic health बात, holistic health में बहुत सारे parameters आते हैं. And physical is one parameter. Obviously, it is important. All are interconnected. Believe me. So if you have bad physical health, it will impact your emotional, mental health. If you have a bad mental health, so it is all connected. So there are 5 parameters according to me, which is connected. And the first one is physical health, which a lot of people talk about it. Because लोग जब health बोलते हैं, लोग बोलते हैं health मतलब कि physical health. No, physical, emotional, mental. I will also call financial health also, because if you don't have worries about finances, then you will not have an impact. Then the last and the most important is spiritual health. If you have that taken care of, maybe all other things will be taken care of. So these are all holistic health, is not only about physical health. Unmute Anuradha, आपका. Ji. So yeah, I said absolutely. It's so important. Somehow I always say that spiritual quotient is your foundation. If you feel centered, if you feel one with the Almighty, half the diseases will not touch you because your frequency is always high. And every virus or every bacteria has a frequency. If you are at a higher frequency, they will not be able to impact your health that way. So very rightly said. And I am a little bit inquisitive. Thoda hatke question hai, Puneet.
See, you have a very different profile and diversified. Like you have been a CA, right, by education. Then you have your experiences, and then your pharmaceutical. So then you are a traveler. So what exactly triggered your from CA to your business? How did all these things happen? So by choice, what would Puneet do? Okay, so CA was because I was good with finances and academic, so I was always a topper in maths. Okay, and then I thought कि it's a good career option. Then I started business because I was very ambitious in life. ठीक है, but with ambition और and I love traveling, so it was like I love traveling. मुझे traveling जितना मर्जी करा लो, and I used to travel for my work day in day out, and believe me, I ignored my health. So अभी तो मेरी अगर आप शादी की फोटो देखोगे ना, आई वॉज वेरी थिन, Okay. एंड मेरी अभी आप 1-2 साल पुरानी फोटो देखोगे, आई वॉज वेरी फैट. अभी भी आई एम नॉट फुल फिजिकली जो मैंने टारगेट लिया है, बट मैंने 10 साल 12 साल अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, एंड आई एम वेरी ऑनेस्टली एडमिटिंग इट कि क्योंकि मुझे लगता था यार ठीक है, अभी तो उम्र है, अभी काम करने की उम्र है, घूमते हैं, ऐश करते हैं, काम करते हैं, बेसिकली ऐश भी नहीं कि भाई वो चाहे 14 घंटे 16 घंटे काम कर, एंड इट एडेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज आई वॉज एक्सर्टिंग माई सेल्फ. उस समय आई वॉज मे बी यंग, 22 23 25, पता नहीं लगा, बट eventually I started realizing that मेरी energy level are dropping down because I was not taking care of my health. And somehow slowly and gradually, thankfully I got some mentors and somebody who clearly told me, Puneet, now it is high time you start taking care of your health. And Right. I started spirituality. I have a fitness coach also. I have a spiritual mentor also, जिसको हम गुरु माँ बोलते हैं. तो मैंने हर एक पैरामीटर में फोकस किया बिकॉज फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान हो गया, बट बाकी Right. हेल्थ में गड़बड़ थी. तो मुझे समझ में आया कि ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ इज, you at least, if not 100, let's say if you say 100 marks, at least we should be 70-80, you should be passing with all other parameters. So if you focus only on one side, which is okay to first for the first 5-10 years, it will impact other things. So you can always have a balanced approach. जैसे आपने बोला आपका भी, you are a performance coach and I know you follow balanced approach. It is possible. You will be more effective in your work, more productive if you taken care of maybe half an hour 1 hour on your physical health or maybe spiritual health. It will actually add on lot of value because lot of people think कि अगर आप ना इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओगे, आप यू विल बी स्लोइंग डाउन, और यू अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज में करोगे तो आप काम कहाँ करोगे. बिलीव मी, जब आप एक्सरसाइज करते हो आपके जो बॉडी के जो अननेसेसरी नेगेटिव एनर्जी होती है वो सारी फ्लश आउट हो जाती है. लाइक अगर आप स्वेटिंग करते हो कुछ भी और आप स्पिरिचुअल करते हो तो आपकी नेगेटिव एनर्जी, मेंटल नेगेटिव एनर्जी भी फिल्टर आउट हो जाती है. सो अगर हम हाफ एन आवर 45 मिनट्स भी डेडिकेट करते हैं तो इट विल एक्चुअली मेक यू वेरी प्रोडक्टिव इन अदर स्फीयर्स ऑफ लाइफ, and that is what I believe. No, no, absolutely. Very right. Yeah. So you need to strike a balance between all the areas of your life. And the key areas, as you've covered, are these 5 areas. If we focus on them, if we find each सूत्रा बोलते हैं वैसे एक एंकर ढूंढ ले हम इस हर एरिया के साथ में कि इमोशनल एंकर. इफ यू आर फीलिंग इमोशनली ड्रेन्ड आउट, what will keep you going? So I think, like for me, if I say emotionally, if I am feeling sad, upset or low in energy, इसको हम प्राण शक्ति बोलते हैं. तो अगर प्राण शक्ति कम फील हो रही है तो मुझे नेचर के साथ में एकता के प्लांट्स के पास पे भेज दो. या इवन इफ आई लाइक इफ आई एम फीलिंग वेरी ड्रेन्ड आउट और मुझे लग रहा है कि अनइजीनेस है, कुछ रेस्टलेसनेस है, एक पेड़ को आप हग कर लीजिए. जो आपको ग्राउंडिंग का इफेक्ट मिलता है जस्ट बाय hugging that tree, because that tree is very deep rooted. वो ग्राउंड में कहाँ उसकी रूट्स हैं, सो वहां से आपको ग्राउंडिंग मिलती है. आई थिंक दी स्मॉल स्मॉल एंकर्स इफ वी फाइंड आउट फॉर आवर सेल्फ, देन दैट विल ऑलवेज कीप अस अफ्लोट. और कभी मेडिसिन की या कहते हैं ना वो एटलीस्ट मेंटल हेल्थ में हमें बहुत हेल्प करेगा ये सब. फिजिकली तो अगर आप एक्टिव हैं तो हम नेचुरली वी विल गो फॉर एक्टिविटीज. यू वर सेइंग समथिंग पुनीत. आपने सही बोला बिकॉज बचपन से ना मुझे बड़ा शौक था घूमने का. और कहाँ घूमने का शौक था? माउंटेन्स में. जी.
सो एंड बीचेस में। एंड कभी जी आपने देखा होगा कि आप कभी भी ना माउंटेन्स में आपको अच्छा लगता है, बिकॉज वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर वेरी क्लोज टू नेचर। हमें जब वी आर क्लोजर टू नेचर ना, आवर एनर्जी लेवल और इंक्रीजेस एज यू सेड। एंड अगर आप बीचेस पे जाते हो, आप पैदल चलते हो उस पे रेत पे, कितना अच्छी फीलिंग आती है। बचपन में क्या होता था, आज से कुछ सालों पहले, अब तो चीजें निकल गई, घर में लोगों ने सीमेंटेड प्लेस बना दी, नहीं तो अदरवाइज एक खुला आंगन होता था जहां बच्चे खेलते थे मिट्टी में, और बच्चे की बिल्कुल इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती थी। बट अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने बोला ग्राउंडिंग है, जैसे आप नंगे पैरे चलो, दैट इज राइट ब्यूटीफुल वे, hugging a tree, amazing. So these are very beautiful techniques to draw the energy to from the nature, so mother nature. And mother nature is giving, I always say mother nature is giving, whether it is they're giving us fruits, living water, everything they're giving. So the nature is giving, even sun is giving without expecting anything. So they are giving, let us receive it, let us be with them, you will feel energized. That's why people say कि हम mountains पे जा रहे हैं, they get so much of energy. So I'm sure आपके घर के आसपास कोई ऐसी प्लेस होगी जहां आप वॉक पे जा सकते हो नंगे पैरे, दैट इज वन वे। देयर इज अ ट्री, यू कैन डू प्लांटेशन, लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे अगर हम बात करें एकता जी की, तो एकता जी का जो थीम है कि एवरी कॉर्नर नीड्स अ प्लांट, इट्स अ राइट ब्यूटीफुल थिंग। घर में अभी कुछ मैंने सोचा है कि हर एक घर में, मेरी वाइफ ने एक प्रॉपर किचन गार्डन बनाया है, उसको बहुत शौक, और उसको शौक है छोटी छोटी जगह पे। अब मैंने आजकल लोग नकली फ्लावर लगा देते हैं अपने ऑफिस में, नहीं, असली लगाओ ना, उसकी एनर्जी लेवल, उसकी ऑरा, ऑक्सीजन देता है, इतना कुछ होता है। सो इट इज सो ब्यूटीफुल दैट नेचर इज देयर, यू आर रेडी टू रिसीव दैट एनर्जी लेवल, योर इंक्रीजेस नॉट ओनली फॉर यू बट योर फैमिली। इन्वॉल्व योर किड इन, लाइक मेरा बेटा है नमन, उसको बहुत पसंद है प्लांट्स को वाटर करना। मेरे फादर यूज टू सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ प्लांट, वो अपना बर्थडे नहीं मनाते थे, उनको एक डे डेडिकेट किया होता। एंड अभी मेरी तरफ से मेरे को मेरे फादर की रिक्वेस्ट आई, फादर के फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई कि आपके फादर ना बर्थडे बनाते थे प्लांट्स का, आप भी बनाओ। एंड एवरी ईयर ही वो अपना बर्थडे नहीं मनाते थे, कहते आज प्लांट का बर्थडे बना, दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू डू। एंड इट वाज सो अमेजिंग फीलिंग। एंड कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं, बिकॉज इस रेस में भाग गए हैं। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया एंड सो मेनी थिंग्स हैव कम अप, जहां पे वो ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, नेसेसरी इवल, बट दैट नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे ना, योर एनर्जी लेवल विल गो अप, दैट इज एक्चुअली होलिस्टिक हेल्थ। व्हाट परिजय जीनेस इज डूइंग, व्हाट एकता जी ने जो थीम बनाई है कि हर एक जगह वो प्लांटेशन, हर एक कॉर्नर में। आप नहीं जा सकते बाहर, अपने घर में प्लांट लगा लो, प्लांटेशन में चले जाओ, 15 मिनट कर लो, बिलीव मी। बिकॉज आप एवरी वीक तो एवरी मंथ तो नहीं जा सकते गोवा घूमने के लिए, या फिर कसौली, या फिर कहीं घूमने के लिए, इट इज नॉट राइट पॉसिबल, यू कैन नॉट टेक अ ब्रेक। कोविड में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो, उनके पास अच्छी ऑप्शन थी, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया, वर्क फ्रॉम होम नहीं किया, वो कहते हैं हम ऋषिकेश चले गए, देहरादून चले गए, गोवा चले गए, वहां जाके हमने 2 महीने काम किया, अब वापस आना पड़ रहा है उनको, कह रहे कितने अच्छे दिन थे। तो उनके पास लिबर्टी थी उस समय कोविड में, बट अब नहीं है। तो अपने घर के आसपास हमें छोटी छोटी चीजें कर सकते हो, बिलीव मी, एब्सोल्युटली इट रियली हेल्प्स। Absolutely, very rightly said. So it's very important, as we understand from Puneet, every corner, and we hear it from Parijay Ekta as well. Every corner needs a plant. And you know, it's like they talk to you, they communicate to you, they are always giving energy to us. So it's very important for us to understand the importance of these plants. तो मैं वापस हमारे टॉपिक पर आती हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम बचपन में जब थोड़ी सी खांसी हुई तो मम्मी ने शहद में काली मिर्च डालकर अदरक का जूस डालकर दे दिया, और पापा का अलग नुस्खा होता था कि 1 चम्मच ब्रांडी कोसे पानी में दे दिया। सो वी वुड हैव ल्यूक वार्म वाटर, एंड बचपन से हमें ब्रांडी मिलती होती थी, और वो भी अच्छे वाली, वो आर्मी वाले अंकल से मंगवा कर देते थे। So there are a lot of such, I'll say hacks. Now we call them hacks, but in childhood we heard Dadi Ma ke nuske. So Puneet, what are your Dadi Ma ke nuske which you follow at your home and which we can tell our audience? तो कुछ तो फायदा भी हो ना सबको इस बात का। ओके, तो जैसे आप दादी माँ के नुस्खे हैं, मैं अपनी अपनी वाइफ को बोलता हूँ, क्योंकि उनके
उनके जो उनके ग्रैंड नाना जी थे, तो वो बहुत ही अच्छे मतलब कि नुस्खे बताते थे उनको, और बहुत सारी चीज तो वो ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। तो काफी सारी चीजें वो बताते थे जो नुस्खे थे। जैसे जैसे आपने बोला कि हनी, तो हनी तो सीजन में बहुत अच्छा है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ हैविंग शुगर Right. इन द, आजकल जैगरी भी लेते हैं लोग, नहीं तो आप हनी भी ले सकते हैं। जैसे आप ग्रीन टी लेते हैं तो हनी ले लो rather than शुगर, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। जैसे मैं कई बार, मेरे को तो थोड़ी सी ढीली लगती है, तो मैं हल्दी वाला दूध पी लेता हूँ, ठीक है, टर्मरिक। अब आपको पता है बाहर के देश में हल्दी की कैप्सूल बिकते हैं। आई एम टू फार्मा, आई हैड अ गुड डिमांड। मुझे ऑस्ट्रेलिया से फ्रेंड का फोन आया कि मुझे ना हल्दी वाले कैप्सूल्स चाहिए, यहाँ पे बहुत डिमांड है। बहुत डिमांड है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर एक बंदे को पता है। तो इंडिया के जो नुस्खे हैं फायदे चलते हैं, आपके नुस्खे बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करके दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ मनी। लाइक इन सर्टेन एरिया स्टारबक्स हैव समथिंग कॉल्ड टर्मरिक लाते। तो Yeah. हमने घर पे दूध नहीं पियेंगे हल्दी वाला, बट वहां पे स्टारबक्स में हम 500 रुपए की टर्मरिक लाते पियेंगे। मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं, देखो तो वो तुम्हें ब्रांडिंग करके चमका के पैसे दे रहे हैं, तो आपको मजा आ रहा है वहां पे टर्मरिक लाते लेनी है अपने, बट घर में हल्दी वाला दूध नहीं पीना। ठीक है, तो बट ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था, खाने से पहले मेरे फादर करते थे, खाने से पहले ना आधा घंटा पहले सैलेड ले लेते थे, टमाटर खीरा, बस वो चलता था कि आधा घंटा। आए ऑफिस से, कहते खाना आधे घंटे बाद खाएंगे, पहले टमाटर और सैलेड खाएंगे। बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई Right. साइंस तो नहीं है, बट लेकिन वो नुस्खा नहीं था, बट वो कहीं ना कहीं इनग्रेन था। और अभी मैंने शुरू किया है, अब मैंने अपना फिटनेस कोच रखा हुआ है, अब वो बोलता है कि आपको सैलेड खाने हैं। अब मैंने पे करके, जो मेरे फादर ने बताया था मैं भूल गया, मे भी जैसा लगता है उन्होंने किया था, बट सबकॉन्शियसली याद है यार, हाँ यार ये तो सब कुछ वही करते थे। तो अब मैं सैलेड लेता हूँ नॉर्मली, विद बिफोर द मील आई ट्राई कि एटलीस्ट सैलेड लेता हूँ। उसके बाद मेरी डाइट उस हिसाब से कम हो गई है और अच्छा लगता है। इट इज, अगर आपको नहीं पसंद है तो मेरे फिटनेस कोच कहता है कि आप थोड़ा उसमें तो फ्लेवर डाल दो, उसमें उसमें आप नींबू नमक डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मसाले डाल दो, बट एटलीस्ट खा तो रहे हो ना सैलेड, एंड हेल्दी चीज खा रहे हैं। तो लोग कहते हैं आज ऑर्गेनिक खाएंगे। भाई पहले बेसिक खा लो, बेसिक क्यूकम्बर से टोमेटो से शुरू कर लो, ये चीजें खा लो। उसके बाद वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की अडल्ट्रेशन है, बेसिक चीज तो शुरू करें। ठीक है, True. ऐसा नहीं है कि आप सुबह शाम को जंक फूड खा रहे हो और एक बार आप ऑर्गेनिक खा के आपका हेल्दी हो जाएगा। इट हैज टू बिकम अ योर लाइफ रूटीन। सस्टेनेबिलिटी की बात की आपने स्टार्टिंग में अनुराधा, एंड जी. इनफैक्ट एकता भी बोलते हैं सस्टेनेबल। वो चीज करो जो आप सस्टेन कर सकते, Yeah. एक बार ही ले लो। मेरे एक फ्रेंड है, तो वो ना, उनका रूटीन है मॉर्निंग में वो 12 बजे से पहले वो सिर्फ सैलेड ही खाते हैं, एंड और कुछ नहीं करते हैं, बेसिक चीजें सैलेड ही खाते हैं, 12 बजे के बाद खाते हैं, तो सैलेड ही खाते हो, तो दैट इज हाउ दे आर कीपिंग देमसेल्फ हेल्दी। तो आप दो तीन चीजें कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या एक्सेसिबिलिटी है, जो आप सस्टेन कर पाओ। एक बार ही करने से कुछ नहीं होगा, Right. बट जैसे लोग कहते हैं मैं आज ना 1 घंटा दौड़ा, कुछ नहीं होगा। आप हर रोज 5 मिनट दौड़ो, 5 मिनट वॉक करो, कुछ भी करो, सस्टेनेबल करो, फिर थोड़ा उसकी इंटेंसिटी बढ़ा लो, बी कंसिस्टेंट, थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाओ। ठीक है, स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स विच इज सस्टेनेबल। और आपको अपनी फ्लेवर के हिसाब से देखना है। मुझे स्प्राउट्स पसंद है, तो मुझे पता है स्प्राउट्स हफ्ते में 2 दिन, 1-2 दिन बन जाएंगे घर में। तो आपको जो पसंद है उस हिसाब से आप देखो। हनी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। इनफैक्ट आई एम द रॉन्ग पर्सन। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स इफ यू हैव अ ग्रैंड पेरेंट्स, if you are lucky to have a grandparent right now alive, or if not, ask your parents। आज जाना इस पूछना अपने पेरेंट्स से कि मुझे बताओ कि आप एक्स्ट्रा क्या, ऐसा क्या करते थे। क्योंकि हमारे यहाँ पे मुझे याद है, मैं नानी हाउस जाता था, मुझे ना वो दूध देते थे, कच्चा दूध और वगैरह, सीधा ही। तो वो गाय हमने रखी हुई थी, तो वो भी था, वो भी सस्टेनेबिलिटी थी, क्योंकि दैट काउ वाज अ फैमिली मेंबर। तो दैट वाज गुड टाइम्स। तो आज तो शायद हम अपने मॉडर्न डे में अब गाय नहीं रख पाते या फिर कुछ, बट कुछ और कर सकते हैं। देयर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू, and so I am not the right person. Go to your parents, grandparents, or anybody who's the eldest in your family, so that is the right person। और जो आप कर पाओ सस्टेनेबल वो करो। सिर्फ आज के लिए आज मोटिवेट होके करने का कोई फायदा नहीं, इट विल नॉट लीड यू एनीवेयर। सस्टेनेबल एंड छोटे छोटे बेबी स्टेप्स जो आप कर सकते, दैट आई वुड से। That's a very humble approach.
आपने हमें सब कुछ बता दिया, लेकिन बोला जाओ अपने पेरेंट्स से जाकर और बात करो और पूछो। तो बात सही है और बड़ी इम्पोर्टेंट है, और हम सबको, ये आपने सही कहा, हमें सबको पता है ये बातें, बट हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सो आई ऑलवेज से, भाई इंफॉर्मेशन इज नॉट एनफ, इम्प्लीमेंटेशन इज। हर ज्ञान पड़ा हुआ है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम, गूगल पर, सब कुछ ये बातें पड़ी हैं, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। तो चाहे तो दो चीजें हम पिक कर लें आज के सेशन से, एंड वी प्रिवेंट इट, रादर हम डिजीज होकर बात करें कि मेडिसिन खानी है। तो आप अगर एक स्मॉलेस्ट स्टेप लेंगे, तो आपके घर के अंदर आपकी जो किचन है, that is full of all the ingredients that can prevent almost any disease. You start with your garlic, you start with ginger. Garlic को आयुर्वेदा में pearl कहते हैं, right? So it is that good. अगर बीपी है, सुबह आप एक क्लव गार्लिक का कैप्सूल की तरह ले लीजिए, helps you, right? Then you have ajwain. We also call it asafoetida. So अगर gastric problem है, just put a pinch of salt, have it with warm water, and you are good. So that ways, there are so many ways to prevent disease right in the kitchen, right? So इनफैक्ट your मुझे इसे एक और याद आया, मेरी बचपन में बोलते थे कि तुलसी चबा लो, correct, तुलसी रख लो, आराम से मतलब रखो, कितना। right? और तुलसी में इतने गुण है, ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब कि सारी साइंस की सारी मेडिसिन फेल है, ठीक है। और एक तुलसी का पत्ता, तुलसी रखो, तुलसी की लोग पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? वो उसमें वो, तो इट इज, मतलब कि हमें लगता है यार ये तो अंधविश्वास है, या फिर ये क्या बात कर रहे हो, बिलीव मी। अब वो मेडिकल साइंस वो सब कुछ प्रूव कर रही है ना, तो हम मान रहे हैं। पहले आपने माना नहीं था कि तुलसी में कितनी पावर्स है, तो ये सब कुछ है अपने आयुर्वेदा में। बट बेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि भैया क्या करना चाहिए, होलिस्टिक हेल्थ के लिए आप क्या करते थे। उनका रूटीन ही ऐसा था, दैट इज व्हाट। जैसे अब सर्दियां आ जाती हैं, तो तिल के लड्डू होते हैं, क्योंकि वो बड़े अच्छे हैं हेल्थ के लिए। वो मतलब कि हर एक छोटी छोटी चीजें क्योंकि वो खिलाते थे, क्योंकि उनको पता था कि कौन से सीजन में क्या चीज खाना है। अब तो वो फ्रोजन फ्रूट आ गए हैं, वो हर एक सीजन में हर एक चीज मिल जाती है। बट वो उस सीजन में क्यों लेना है, उसके पीछे भी एक साइंस है, नेचर ने क्यों बनाया हुआ है। तो ये नहीं है कि आप ऑल सीजन मेरे को तो यही सब्जी पसंद है, मैंने यही खाना है, नहीं। जो नेचर कह रही है, नेचर के हिसाब से यू हैव टू अडेप्ट। तो दैट इज हाउ इट इज। Absolutely. So, as we are talking about holistic health, so this is what we are suggesting all of you, with our humblest request to all of you. Please, ये आपकी किचन में आइटम्स हैं जो आप फिजिकल हेल्थ के लिए यूज कर सकते हो. Other than this, adequate sleep is very important for your exercise, is very important for your health. So exercise, sleep, food, these will help you all together in your mental, physical, emotional, all these sides. Now, when we are talking about the holistic health, so I would also like to touch upon a very important aspect of holistic health, which is silence, solitude, and we call it meditation. Right. So, Puneet ji, I understand you must be practicing meditation. So, what is your go-to meditation? What do you think is meditation for you? And how do you feel, centered when you are in a mess, or, the situation is not good around? देखो, मेडिटेशन ना इज अ वेरी डीप मीनिंग, बट आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग प्राणायाम अभी एज ऑफ नाउ, एंड प्रॉब्ली फ्रॉम द लास्ट 2-3 years, एंड एक प्रोसेस फॉलो किया हुआ है जो मैं करता हूँ। एंड बिलीव मी, जैसे आपने प्राणा बोला, प्राणा आपने शेयर किया था, इट्स अ लाइफ एनर्जी, आवर ब्रेथ। इफ यू जस्ट टू फोकस ऑन योर ब्रेथ ना, काफी सारी चीजें होती हैं। हमें बचपन में मैं बचपन में योगा बहुत किया, ठीक है, क्योंकि मुझे बताया गया कि अस्थमा है तो योगा करो, इट विल क्योर योर अस्थमा, एंड इट हेल्प, इट इज अ प्रिवेंटिव थिंग। बट आजकल ये योगा, लोग कहते हैं इट इज फैंसी वर्ड। अब वो योगा के भी अलग चीजें हो गई, पावर योगा, ये योगा उसके भी कॉमर्शलाइज हो गया, बेसिक चीजें हैं। आई से बेस्ट थिंग इज योग इज योर एक्चुअली यूनियन विद योर सेल्फ, विद गॉड। एक्चुअली योगा वहां से शुरू हुआ था। तो मेडिटेशन, दीज आर आर्म, ये सारे दीज आर स्मॉल स्मॉल आर्म्स ऑफ योगा। तो हमें बचपन से हमें सिखाया गया है कि योगा कर लो, बैठ जाओ और
अपनी ब्रेथ पे कर लो, बहुत छोटे छोटे प्राणायाम है जो मैं करता हूँ, ठीक है। एंड बिलीव मी, 15-20 मिनट करते हैं और 10 मिनट उसके बाद आंख बंद करके बस यू जस्ट जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग। मेडिटेशन इज नॉट डूइंग एनीथिंग मेरे हिसाब से। अभी आई एम मैं बहुत शैलो लेवल पे बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं उस लेवल पे Right. नहीं पहुंचा हूँ, बट इट रियली एनर्जाइज मी। इट इज लाइक अ बैटरी चार्जर। अगर वो 20 मिनट किया ना, इट मेक्स मी माई बैटरी फुल 100%। एंड एटलीस्ट फॉर वन डे आई कैन सर्वाइव। बिकॉज जैसे आपने बोला स्ट्रेस है, स्लीप की कमी है, कुछ भी हो सकता है, ट्रैवल अराउंड ट्रैवल करता हूँ मैं बहुत ज्यादा, तो 15-20 मिनट का योगा मेडिटेशन में करता हूँ। इनफैक्ट देयर इज अ फनी इंसिडेंट, आई वाज ट्रैवलिंग एंड तो योगा में कई बार सुबह जल्दी की फ्लाइट ली और मैं रह गया योगा। तो मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, एयरपोर्ट पे मैंने क्या किया, एक कोने में बैठ गया एंड आई यूज्ड टू डू वाज डूइंग भस्त्रिका एंड पीपल वर वाचिंग मी। आई डिड नॉट गिव अ डैम अबाउट। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं दिखाने के लिए नहीं कर रहा। मैं वहां बैठ के साइड पे कोने पे चला गया क्योंकि और कोई प्लेस थी नहीं और मेरे पास टाइम था, देयर वाज अ फ्लाइट। आई स्टार्टेड डूइंग भस्त्रिका, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो करना है आप कर सकते हो। इट इज लोग वहां पे सोशल मीडिया में अजीब सी वीडियोस डांस बना के फोटोज दे सकते हैं, तो हम अपनी योगा नहीं कर सकते। तो योगा के लिए कोई कहीं बैठ के भी, अब नीचे जमीन पे, मेरे मेंटोर कहते हैं, स्पिरिचुअल मेंटर, कि आप जमीन पे बैठ के करो क्योंकि आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, यू विल फील मोर क्लोजर टू द अर्थ। तो वहां बैठ के, कहीं बैठ के भी आप योगा कर सकते हो। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये बहाना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, वी आर टू बिजी। 15-20 मिनट करोगे, इट विल बी चार्जिंग योर बैटरी। जैसे आपने बोला फिजिकल हेल्थ, उसके 4 पैरामीटर्स है, मेरे फिटनेस कोच कहते हैं कि वन इज स्लीप, एज यू सेड, सेकंड इज एक्चुअली डाइट, सेकंड थर्ड इज एक्सरसाइज, छोटी मोटी आप यू कैन वॉक, जैसे भी आपकी हेल्थ के हिसाब से, एंड फोर्थ इज स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट। वो स्ट्रेस क्यों आता है? क्योंकि प्रेशर्स हैं, तो आप योगा करते हो, योर स्ट्रेस विल बी गॉन। व्हेन यू डू मेडिटेशन, वट एवर यू फॉलो, मतलब कि कुछ भी जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है, शुरू करो ना, 5 मिनट से करो। मेरे को आज भी ध्यान नहीं लगता मेडिटेशन में, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, बट 10 मिनट बैठता हूँ ना, बिकॉज जैसे आपने बोला साइलेंस, आई एम अ वेरी एग्रेसिव पर्सन एज अ पर्सनैलिटी। जो मुझे जानते हैं ना, मुझे ना एक्शन बहुत पसंद है। तो मेरे में मुझे मेरे एक मुझे कोई बोला कि आप में तामसिक बहुत ज्यादा है, मतलब यू ऑलवेज वांट टू डू एक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स, बट विद योगा आई हैव calm down, मेरे nerves calm down हो गए। Otherwise I used to be very aggressive and it was actually a stress for people who are dealing with me. I know a lot of people, thankfully I have changed my ways. I don't know, maybe my family will vouch, or my employee, or my partners, or my vendors, but I have become little calmer thanks to meditation and yoga, and I'm enjoying it, and it is just the beginning. So I'm enjoying it. So I'm loving myself, बिलीव मी। और विद टाइम लॉट ऑफ पीपल से, जैसे मुझे एक फ्रेंड की छोटी सिस्टर ने फोन किया कि भैया आप इतने कूल कैसे रहते हो, और आप, वो कहते हैं कि मुझे तो अभी स्ट्रेस हो जाता है मंडे टू फ्राइडे ना, काम करके फ्राइडे आई फुली, मतलब कि मुझे तो फिर सैटरडे संडे ना, या फिर पार्टी करनी है या फिर कुछ करना है। मैं कहा तुम हर रोज बैटरी चार्ज करो ना। कहते कैसे? 15 मिनट की मेडिटेशन। कहते यार आप कितना बोरिंग है। कहते शी सेड इट इज सो बोरिंग कि किसी के साथ बात ना करो, खाली बैठे रहो। मैं कहा भाई, इफ यू कांट लव योर सेल्फ, यू कांट लव एनीबडी। यू योर जर्नी विद योर सेल्फ इज द लॉन्गेस्ट। आपके पेरेंट्स कब तक रहेंगे आपके साथ? लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं आई लॉस्ट माई फादर, ठीक है, अब उनकी एक एज है। आपके बच्चे भी कितने देर तक रहेंगे? आपको सोचेंगे बच्चे आपकी जिंदगी भर रहने वाले हैं? भाई उनकी शादी हो जानी है, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाने हैं। कल आपका स्पाउस भी है, शायद वो थोड़ा लेट भी आया और उसकी भी अपनी एक लाइफ है, और शायद आई डोंट नो, आई नो पीपल कि इतना स्ट्रेस आ जाता है। आई हैव सीन कपल्स जहां पे एक स्पाउस की डेथ हो गई, एक बंदे की डेथ हो गई, दूसरे वाला भी चला गया क्योंकि वो दैट पर्सन वाज नॉट लविंग, अपने आप से प्यार नहीं करता भाई। बट आई हैव सीन लॉट ऑफ सिंगल पीपल, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ बिकॉज दे लव देमसेल्फ। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि पहले खुद से प्यार करो और खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को पसंद करो। तो खुद में कमियां भी होंगी, तो जैसे मेडिटेशन में बोलते हैं कि आप ये नहीं कर रहे मेडिटेशन में कि ये सही है ये गलत है, आप एनालाइज नहीं करो, आने दो, embrace, surrender, accept what is happening and enjoy that silence. Slowly and slowly it will sync up. मैं 15 मिनट से ऊपर नहीं कर पाता, ठीक है, प्राणायाम अलग, साइलेंस 15 मिनट से ऊपर नहीं, बट 15 मिनट इज मेरे लिए ना, इज लाइक बिग अचीवमेंट फॉर पर्सनैलिटी लाइक मी। आई विल, मुझे किसी ने बोला
विपासना कर लो, उसमें 10 दिन में इट वाज, मैं कहा भाई 10 दिन तो मैं हाथ जोड़ के विनती है, मेरी अभी इतनी इम्यूनिटी नहीं बिल्डअप हुई है, बट हाँ मुझे आधा एक घंटे पे पहुंचना है, एंड बिलीव मी इससे मेरी प्रोडक्टिविटी लॉस नहीं होगी, इंक्रीज होगी फॉर श्योर, आई कैन टेल यू, बिकॉज मेरी प्रोडक्टिविटी अब इंक्रीज हो गया, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एंजॉइंग माई टाइम। सो मुझे लगता है कि इट इज अ मस्ट थिंग, और बच्चों को सिखा दो, मैंने अपने बच्चों को जबरदस्ती योगा में और जगह डाला है, ठीक है, उनकी चॉइस है कि वो, अभी मैं सोच रहा हूँ लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कर लूँ, मुझे भी देखते हो, तो धीरे धीरे करके मे बी अगर आप आज से शुरू करोगे, believe me, it will be a very beautiful journey with yourself. And once you establish love with yourself, then you're actually able to align with universe also, with God and everybody. Okay, then energy will come because you are drawing that energy when you are in silence. आप किसी से बात नहीं कर रहे, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों से, मतलब कि आपके लिए तो चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस आप लोगों से बात करते रहते हो, तो स्टार्टिंग में सेल्फ टॉक होएगी, क्या कर रहा हूँ, क्यों बैठा हूँ, बहुत कुछ आएगा, अजीब से ख्याल आएंगे। मुझे 2-3 साल लग गए, अभी अभी भी मैं 10-15 मिनट पे पहुंच चुका हूं। तो मुझे लग रहा है कि चलो शुरू करते हैं, एंड साइलेंस इज अमेजिंग, अमेजिंग। Yeah, yeah. So, Puneet, now that you have talked about silence, तो मैं silence के ऊपर मैंने एक book लिखी है actually. That is about a lot of topics along with transformation, happiness. So I have also written about silence. और मुझे लगता है silence में इतना कुछ है कि आपको बहुत कुछ पता चल सकता है silence से. Silence is a more communication act. You to understand the energy. आई And be थिंक understood. अनुराधा, बीच में एक लाइन हैंग हो गई थी, सॉरी, आपने क्या बोला साइलेंस के Okay, बाद? so I'm saying that if somebody is not able to say it, you can actually sense it from the silence. वो एनर्जी इतना बताती है आपको, तो आई थिंक साइलेंस प्रैक्टिस भी करनी चाहिए और दूसरों को भी थोड़ा सा स्कोप देना चाहिए साइलेंस का, जो हमें कई बार मुश्किल लगता है, हमें लगता है अरे क्या चल रहा है, वो चुप क्यों है, आज बहुत ज्यादा चुप क्यों है। तो एक एक्चुअली मैं मेरे को आपको ना गाने इस पे ना बहुत अच्छी बात बोलता हूँ, 2 चीजें आपने बोली बहुत अच्छी, इनफैक्ट दो, जी there are 2 things about silence and vibration and everything, what frequency you're talking about, actually everything is linked. I will give you 2 basic examples. Like काफी लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो बट काफी लोगों को आप देखा होगा कि उनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी, सिक्स सेंस क्या होती है कि यू कैन एक्चुअली गेट पीपल्स वाइब्स वेरी क्लियरली, कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि पीपल में अपीयर वेरी गुड ऑन द फेस, एंड आई हैव आल्सो मेड बैड डील्स विद बैड पीपल इन माय बिजनेस, अदरवाइज आल्सो रिलेशनशिप में लोग सफर करते हैं क्योंकि वाइब्रेशन नहीं हमें समझ में आती लोगों को। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अपना, कि व्हाट हैपेंड इज, जब से मैंने मेडिटेशन करनी शुरू की है ना, तो मुझे लोगों की वाइब्स आ जाती है, मतलब पहले मुझे नहीं आती थी, थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई है। तो एक डील थी जो मैंने और मेरे ब्रदर ने मिलके की, एक प्रॉपर्टी की किसी के साथ, तो मेरे को, मैंने बोला यार कैसा लगा बंदा, मैं कहा बात तो सही बोल रहा था बट मुझे से वाइब अच्छी नहीं। तो ही सेड कि यार ये वाइब उतना, ये कहानी मुझे बता, मत बता, ये प्रैक्टिकल चीजें मुझे बता। एंड ही सेड वेरी क्लियरली, तुझे इसमें कुछ गलत लगा? मैं कहा देखो, बीइंग अ सीए, बीइंग अ फाइनेंस पर्सन, मुझे गलत नहीं लगा, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, तो मुझे वाइब्स नहीं आ रही, बाकी जो तुम्हारा डिसीजन है मेरा भी वही है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली ही वेंट अहेड, और ऑब्वियसली इट वाज जॉइंट, एंड दैट डील बिकेम बैड later on. So I told him that भाई वाइब्स, कहते यार मुझे नहीं समझ में आया था, तो अब मुझे पहले नहीं ट्रस्ट था अपनी वाइब्स पे, अब मुझे ट्रस्ट आने लगा कि हाँ वाइब्स होती है, यू कैप्चर पीपल फ्रीक्वेंसी, यू अंडरस्टैंड, बट वो कब आएगा जब आप थोड़ा सा साइलेंस में जाओ। जैसे आपने फ्रीक्वेंसी की बात की, जैसे आज हम FM ट्यून करते हैं 92.7 जैसे बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पे वही लोग आएंगे जो उस फ्रीक्वेंसी पे हैं। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एनहांस कर दोगे, सबसे बेस्ट तरीका है ग्रेटिट्यूड, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज right. प्रैक्टिस। पीपल से, मेरे मेंटोर कहते हैं, स्पिरिचुअल मेंटोर गुरु कहते हैं कि आप प्रैक्टिस मत करो, अपनी लाइफ को ही शुक्राना, जैसे मेरे वाइफ फॉलो करते हैं गुरु जी को, कहते हैं शुक्राना, हर एक मूवमेंट का शुक्राना, हर एक दिन का शुक्राना, आप आज सांस ले रहे हो शुक्राना, हर एक चीज की ग्रेटिट्यूड, एवरी डे योर लाइफ शुड बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, दैट विल इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, दैट विल एक्चुअली एड अ लॉट ऑफ गुड वाइब्स। So that is what I believe. That is absolutely right. I think our audience are very happy today. आज वो high vibes only उन्हें समझ भी आया होगा that vibes is vibration.
And I'm sure, Puneet, with the depth of the subject that you've covered today, all our audience have learned a lot about holistic health, how we can keep our frequency high, and how we can meditate to make ourselves happy, and we keep going. So thank you so much, Puneet. Over to Ekta. Ekta, thank you so much for giving us this platform. अनुराधा, एक चीज और मैं आपको फार्मा के पॉइंट ऑफ से बोलता हूँ. जी. देयर समथिंग कॉल्ड, मैंने वो कवर नहीं किया था, मेरे दिमाग में पॉइंट आया, मैंने जस्ट लिखा उसको, प्लेसिबो इफेक्ट. फार्मा में एक वर्ड होता है प्लेसिबो इफेक्ट. वो क्या होता है कि आप कोई मेडिसिन खाते हो, ठीक है, उसका असर होता है, सबको पता है. बट प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? अब वो मेडिसिन फेक है, उसमें कोई सॉल्ट नहीं है. एंड बीइंग इनटू फार्मा मुझे पता लगा वर्ड, दवाई में कुछ सॉल्ट नहीं, बट आपको पता है कि ये सर दर्द की दवाई थी, वही वही शेप में आपने गोली खा ली, तो आपका माइंड बोलेगा आई एम गेटिंग क्योर्ड, आई एम गेटिंग हील्ड, आई एम गेटिंग हील्ड. तो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में हम बनाते हैं, बट इट चेंजेस द केमिस्ट्री ऑफ योर बॉडी, बट योर बॉडी इन इटसेल्फ हैज अ केमिकल फैक्ट्री इनसाइड. सो अगर आपने वो वाइब सही रखी जो आप बोल रहे हो, वो प्लेसिबो इफेक्ट विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग यू एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग हीलिंग. सो मेडिसिन इज एन एडिशन टू प्रिवेंशन. तो अगर आप इम्यूनिटी अपनी जो आपकी इंटरनल इम्यूनिटी है उससे कोई स्ट्रॉन्ग चीज नहीं है, वो इम्यूनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है. वो इम्यूनिटी के साथ अगर कोई बीमारी आपको हो भी गई तो आप जल्दी हील हो जाओगे जब आप, इफ यू आर हैविंग अ गुड फ्रीक्वेंसी. इफ काफी लोगों को सेम बीमारियां बहुत देर बाद दवाइयां का असर नहीं होता, और कईयों को जल्दी हो जाता है. क्यों हो जाता है? वो क्या साइंस है? कोई साइंस नहीं है, क्योंकि योर बॉडी इज अलाइंड विद हायर फ्रीक्वेंसी, व्हाट यू सेड. सो बीइंग इनटू फार्मा आई गॉट टू नो कि मेरी हीलिंग जल्दी है अस्थमा की. क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपनी हैबिट चेंज की, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में काम किया, और इट हील्ड. मेडिसिन तो मैं पहले भी ले रहा था, तो इट वाज जस्ट टू कि आप मारोगे दवाई खा ली. बट अगर आपको लॉन्ग टर्म हीलिंग चाहिए तो आई फील दैट होलिस्टिक हेल्थ, व्हाट एकता जी टॉक्ड अबाउट, is the best way, and that is how it is. Yeah. Thank you so much, Puneet ji and Anuradha, for this wonderful session. I was completely engrossed in this conversation, and I would like to share. I noted a lot of points, and I hope all will not mind if I share my inputs to those points. So first of all, we talk about the asthma. So I would like to share that my daughter was also asthmatic by birth. And when at the 2 years we started the inhalers, I was very worried because I saw my father suffering from this asthma problem. And many times, in 2-3 times when I was in college, तो ये हुआ था कि उनका सर्वाइवल की बहुत मुश्किल हो गया था. सो ये सब चीजें देखते हुए आई वाज वेरी वरीड कि नहीं यार, इट शुड नॉट माय डॉटर. बट अगेन द थिंग इज, आई इवन रिसेंटली लास्ट ईयर मेरी डॉटर को थोड़ा बैक का इशू था, तो शी सेड कि नहीं मम्मा मुझे मैच खेलने हैं. तो फॉर 15-20 days आई वाज वरीड, एंड मैं डॉक्टर्स के पास जा रही थी, एंड देन फाइनली आई सेड महिमा यू वांट टू प्ले? कहती यस मम्मा. आई सेड महिमा डू इट. जब उसको एस्थमा था, इवन देन आई स्टार्टेड होम रेमेडीज, एंड दीज होम एस्थमा के लिए और ये जो एलर्जिक इश्यूज होते हैं उसके लिए मैंने और भी बहुत लोगों के साथ बहुत सारी रेमेडीज शेयर की जो मुझे अपनी दादी, नानी एंड मदर से मिली, ताकि उनको जो है मेडिसिन पे. माय डॉटर वाज ऑन इनहेलर्स एट द एज ऑफ 2 years, एंड विद इन 1 year 3-4 months में ही मैंने वो इनहेलर्स बंद किए, एंड एट द एज ऑफ 3 शी स्टार्टेड swimming. So that was the healing, because I said कि महिमा do it यार, कुछ देखेंगे, जो होगा देखेंगे, ठीक है ना. तो बैक के टाइम पे भी I said just go and play. She completed her black belt at the age of 8 years. So this was the power of the mind. I said कि if you want to do then just go ahead. So जो हम अभी बात कर रहे हैं वाइब्स, कि हमें वाइब्स समझ में आती है, आई कंप्लीटली बिलीव कि जब हमें वाइब्स समझ में आती हैं देन वी फील कि यस वी हैव टू डू इट. सो वी हैव टू गो अलॉन्ग विद दिस पर्सन, वी हैव टू डू दिस थिंग. सो दीज वाइब्रेशंस, और ये वाइब्रेशंस जब हमारे काम में नजर आती हैं, ठीक है, ये हमारे काम से ये वाइब्रेशंस मिलती हैं, देन वी कम टू अ सक्सेस. So that is the way of success. And Anuradha ji ने इसे कहा कि kitchen, our Indian kitchen, basically Indian kitchen is full of everything, every medicine, अगर हमें उसको real
उससे यूज करना आता है। एंड लिविंग विद द नेचर, अगर किसी को कोई भी ये महसूस करना चाहे तो दे आर वेलकम एट माई होम। बिकॉज मुझसे बहुत बार ये पूछा जाता है कि अरे यार हम तो नहीं रह सकते, तुम ऐसे यहाँ पर अकेले कैसे रह रही हो? मैंने कहा अकेले, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर। लेकिन उसको महसूस करना है। आई नेवर फील लोनली, क्योंकि बिकॉज मेरे पास यहाँ पर मेरे ग्रीन फ्रेंड्स हैं, इतने सारे फ्रेंड्स हैं। So it's all about your mindset. And Vipassana की आप बात करते हैं पुनीत जी, I tell you, I did Vipassana 10-year course 2 times. It's really super, very amazing. And जो हमारी थॉट्स हैं, जो थॉट्स तो आएंगी, हमें उन थॉट्स को रोकना भी नहीं है। बट ये चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये हमारी थॉट्स जो है हमें कहीं ना कहीं पर फुल स्टॉप लगाएंगे जरूर। सो बेसिकली क्या होता है कि वी हैव टू एम्प्टी आवरसेल्फ। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारी ये थॉट्स जो नॉर्मली हम बिजी होते हैं वो नहीं आती हैं, उस वक्त पे आती हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उस टाइम पे हम अपने आप को खाली करते हैं। अगर हम अपने आप को खाली करेंगे तो ही हम कुछ और नया उसमें भर पाएंगे। सो मेडिटेशन जो है वही हमारा जो अंदर की क्लीनिंग करती है। जैसे वर्कआउट हमारी फिजिकल क्लीनिंग कर रही है, उसी तरह से मेडिटेशन जो है हमारी स्पिरिचुअल क्लीनिंग कर रही है, हमारी मेंटल क्लीनिंग, इमोशनल जो भी बहुत अच्छा हमारा। बोला, स्पिरिचुअल क्लीनिंग, मेडिटेशन, वेरी नाइस। जी जी जी, सो दैट इज द क्लीनिंग। एंड वेरी मच थिंग आई ऑलवेज यूज टू से व्हेन जब ये अनाउंसमेंट्स होती है ना कि यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ पर ऐसे हो रहा है, समटाइम्स आई फील यार दिस इज ऑल्सो द माइंड सेट ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल्स, हम वो सोच रहे हैं कि जब भी हम बीमार होंगे और हमें हॉस्पिटल रिक्वायर्ड होगा। आई नो दैट, मैं आई एम नॉट डिनाइंग कि वी डोंट नीड द हॉस्पिटल, ऑफ कोर्स वी नीड इट। बट लेकिन हम लोग इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि वी नीड द रिट्रीट प्लेसेस, वी नीड द मेडिटेशन प्लेसेस, वी नीड द फिटनेस प्लेसेस, कि हमें खेलना है, हमें खुल के जीना है। वी आर स्माइलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ये क्लियरली कहा जाता है कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो, यू कैन हील इट विद योर माइंड। आई ऑलवेज से दैट एज इज जस्ट अ नंबर। हम सोचते हैं कि नहीं 40-45 ईयर्स में आके हमारे स्पेक्स लगेंगे या ऐसे होगा, बट एक्चुअली बिकॉज आवर माइंडसेट इज लाइक दिस, दैट कि नहीं इस एज में आके स्पेक्स लगेगा, इस एज में आके कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, इस एज में आके हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। सो बेसिकली क्योंकि हमारी कंडीशनिंग, हमारा माइंडसेट जो है वो वैसा है, वंस वी चेंज आवर माइंडसेट देन वी कैन डू एनीथिंग। So we have a Very lot good. of examples like Milind Soman, he's so fit, and Anita Raj. If we see Yeah. her fitness above 60, I think Actually, she is above 60, and her fitness is super. Milind right. Soman is the real example. So all what? How did they do that? Ekta, I want to add And here something. So I somehow feel that, it's like हम कार चलाते जा रहे हैं लेकिन कार की सर्विस कराने का टाइम नहीं है। तो ये yes, रिट्रीट गई, आज हम इस रिट्रीट पे आए हैं, ये भी इसीलिए। अभी 17th 18th 19th पुनीत, आपको भी मैं कहना चाहूंगी, मैं एक रिट्रीट लेके जा रही हूँ पालमपुर बीर में। सो यू जॉइन अस देयर एकता, यू तो मस्ट जॉइन अस। सो these 3 days will be totally on holistic health walks, nature walks, fire ceremony, connecting to the 5 elements, and yoga. So it will be connected to that. So I thought that now we have so many people connected. So Ekta, you can float my number or how they can contact me for the retreat. But I would love to take you all with me on 17th to Palampur. I think you can leave your contact on the in the chat box so that everyone can. सो Sure. अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड, एज जैसे आपने हनी की बात की, कहा जाता है कि जो हनी है ये घी से, हम कहते हैं ना घी से स्ट्रेंथ आती है, सो घी से भी ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। सो थोड़ा सा हनी जो है मेनी टाइम्स घी से भी कई टाइम जो है वो स्ट्रांग है। तो ये सारी छोटी छोटी रेमेडीज हैं, जैसे आपने हल्दी वाला दूध बोला, ठीक है, हल्दी वाले कैप्सूल्स, दिस इज वे ऑफ इजी लाइफ। सो बट द रियल थिंग जो हम नेचुरल चीज लेते हैं ना, उसका कोई भी ऑल्टरनेट जो है वो नहीं हो सकता। एंड यस, आपने बोला कि सस्टेनेबल एंड कंसिस्टेंसी। सो डेफिनेटली एनीथिंग सस्टेनेबल, एनीथिंग कंसिस्टेंट इज मस्ट। अगर हम कहें कि नहीं जी मुझे ऑर्गेनिक सैलेड मिलेगा मैं तभी खाऊंगा, सो इसका मतलब क्या होगा कि आप भी सैलेड ही नहीं खाओगे। सो आप
जो भी खा रहे हैं खाइए, क्योंकि जैसे आप पुनीत जी ने बोला कि इट्स अ वेरी गुड हैबिट, वी आल्सो यूज्ड टू डू, माय फादर वाज अ शॉपकीपर, तो जब वो घर आते थे विंटर्स में और ऐसे, तो पहले हमारे पास सैलेड रेडी होता था, सूप होता था, वी यूज्ड टू हैव द सैलेड एंड द सूप, सो एंड वी वर हेल्दी, हम रात को डिनर भी लेते थे, तो दैट वाज द हेल्दी थिंग, क्योंकि 10 o'clock was the time to sleep, so before that we have to take the soup and salad first and then the dinner. That was because जो हम सैलेड खा रहे हैं, सूप पी रहे हैं, उससे हमारे अंदर फाइबर जा रहा है, एंड दैट फाइबर इज विल मेक आवर मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग, और वो हमारा फुल भी करता है, हम ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे. सो दैट वाज द साइंस ऑफ टेकिंग द सैलेड्स बिफोर मील्स. सो वी जो खाना है ना, खाना भी जो कहते हैं कि एंजॉय, जब तक हम खाना भी अपना एंजॉय नहीं करेंगे, ग्रेटिट्यूड, whenever we have a plate in front of us, we must feel gratitude that हमारे पास खाने के लिए उस परमात्मा ने दिया है. So इस gratitude के खाएंगे तो वो हमारी बॉडी की हीलिंग करेगा. So everything is about the gratitude as well as the habits and our mindset. So that's all my take for today's session. So I hope I haven't taken the much time. So now I request to our audience, Ms. Atika ji, Amit ji, and Rishang ji, if you have any questions that you can unmute yourself and ask. Any questions? Kindly unmute and you can ask your question. Thank you, ma'am. Thank you Thank you all. so much for inviting Puniti. Yeah, so thank you so much. Thank you, जी, Rishang ji. Rishang जी, Thank you आप for कुछ joining. पूछना चाह रहे हैं? का hang हो गया शायद. Session Anybody want to बढ़ ask नहीं any रही है. question? हाँ. So I hope I'm audible. Yes, Yes, you are you audible. are. Yeah, okay. So thank you so much for this lovely session. Nothing from my side, just I would like to tell the audience that जो ये session हुआ है, तो अभी जो आपने बोला कि financial health and physical health, mental health, these are important. So yes, of course, I agree with you. And मैंने just एक थोड़ा सा ही participate किया था इसमें. So nothing from my side because I had to attend the other session also. So thank you so much. Yeah. Thank you, Rishank. You've been traveling and still you connected with us. We appreciate that. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you. So, Amit ji, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? I just want to thank for this wonderful session. So actually I have just another meeting in a minute. So I think again I will like to attend in case you have any session in the future. So Yes, but we I have our to leave holistic now health, urgently. Yeah. yes, our So holistic health session is on every fourth Friday at 6 p.m. It's a fixed timings. yeah, So I you think I can can follow us. take this one Puneet ji. I think he can share details. So I got connected Yeah, through I him will more. share. I Yeah, will yeah, share yeah. that. Sure, I will love to join that. Thank you. sure. Thank you, Thank Amit ji. you. Thank you for sparing your time for the session. अरे Thank नहीं you. सर आप anything for you. Thanks. ठीक है एकता जी. I think we are जी, I good think to go. In fact, आप अनुराधा का अपना जो रिट्रीट है वो मैसेज आया नहीं है क्या कुछ आप होस्ट हैं तो यू कैन पोस्ट इट फॉर देम एंड यू कैन पोस्ट इट माय फेसबुक जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सो दैट अगर किसी ने नोट करना है दे कैन नोट इट डाउन एंड मे बी दे कैन गेट इन टच एंड इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प तो आई ऑल्सो दैट होलिस्टिक वर्ड जब एकता जी ने शेयर किया तो आई हैव पुट अ हैंडल ऑफ होलिस्टिक सक्सेस नेविगेटर एंड ऑल्सो अनुराधा जी का भी सेम ही है तो ऑल तीनों का बहुत अलाइन हो गया so it was maybe it was a God master plan. We connected on this, and if we can be of any help to anybody, they can come and talk to us on our social media, and otherwise also can ping us, and we would be happy to help in any way, whatever possible. Wonderful, Ji. wonderful. So thank you so thank you much. so much. I think Ekta. it's time. Sorry. You please continue. No, I just wanted to thank both of you for your time and I think it's time and thank you. Yeah.
So it's time to conclude. I would like to just add one line that if we want to go long, then we must take rest after each mile and re-energize ourselves. So that is the take, and this is the base thing that we should work on our holistic health first.